Okay, students, this is the newspaper which you should read daily basis. Okay, you people are very new. Okay, first time you are going to prepare for civil services exam. So most of the time, student thinks ki which newspaper we should read daily. So in the group, daily I am posting this newspaper, The Hindu. Okay, which you supposed to read daily. So the first thing about this newspaper, it will be very difficult for you to understand. Okay, the first thing, because you people are undergraduates. Okay, second thing, uh, understanding this newspaper will be little bit tedious for all of you. Initially, it will take more time for all of you to understand. Okay, some will take 1 hour, some will take 2 hours, some will take 3 hours. Okay, but what you have to do, how to read this newspaper, that is the main thing. So what you should do, first of all, you mark the news which is important to you. Okay, and then read only those news. So which news is important to you? For you, I think China lays claim to entire Galwan Valley. So now, if you are preparing for civil services, how you will go? Okay, towards the news, I will let you know in a snippet. Okay, China lays claim to entire Galwan Valley. So how the question will come in UPSC? First thing which you have to study is you should know India and China relation from beginning. So you have to focus on certain things. Those things are key. First thing you will find out ki what is India China relation. Then you will go on the map, you will find out where is Galwan Valley located. Okay, then Galwan Valley location, that will come in geography. Then the strategically how important Galwan Valley is to India and to China. Okay, that also you have to find out. Third, how many, okay, in the past 50 years, okay, what was India's relationship with China? That you should know. Then there is something which is written, see, line of actual control. So what do you mean by line of actual control? That also you should know. Okay, then again you go down, Sino-Indian border. Find out the border, which is this border, and what is the, it is passing through which all countries, how it is located, which states are coming, everything in detail you should find out. Okay, then you move ahead. Other news, there are many news which is of no use in this newspaper. So what you have to do, you have to find out which news is important to you and which you should read, and from where you should make a notes. So on one news, okay, there are many things can be covered, like the China lays claim to entire Galwan Valley. You can get question in geography, you can get question in your international relations, you can get question in your polity. So one topic gives you information about many things. Okay, even historical, India after independence. Okay, you have this portion in your mains paper 1. So India's China relation will come in that also. Okay, so hopefully you will know ki how you should prepare for this exam. About this newspaper, we'll keep separate lectures how to go for this. Hello, sir. Yes, ma'am. Sir, am I audible now? Yes, ma'am. You're audible. Okay. Yeah, Okay. you can start. Okay. Okay. Those students who can turn on their video, please turn on your videos. It will be interactive for me. Okay. Okay. Sorry for the disturbance. Okay. Shall we begin again? Yes, we'll start again. Fine. So we were talking about Indian polity, and today's lecture is all about giving you a glimpse about Indian
पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव? ओके, अब पॉलिटी का मतलब पॉलिटिक्स नहीं होता है, पॉलिटी इज नॉट पॉलिटिक्स। तो यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट किस हु सेड टू हुम, है ना, कौन कौन आज मना ले न्यूज़पेपर में, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं रखना है। ओके, कि राहुल बाबा ने आज क्या कहा, ठीक है, मोदी जी ने आज क्या कहा, ड्रैगन ने आज क्या कहा। ओके, ये जो न्यूज चलता है नॉर्मल न्यूज चैनल्स पे, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट इट, भले वो आपको कितना भी इंपॉर्टेंट लगे। आपको लग रहा है कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, मोदी जी का आज लेक्चर है 1 घंटे 1.5 घंटे का। ओके, मोदी जी लेक्चर इज देयर टुडे फॉर 1.5 hour, मन की बात है। ओके, आपको लगता है, यू थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, बट it is not so fine. So polity mein one thing let us make clear, polity is not politics, so you don't have to be worried about who what political candidates are saying, what political parties are stating. Okay, yes, so what is polity exactly? Fine, अब polity को समझने के लिए we were talking about Montesquieu. Now Montesquieu was a person, वो 18th century में थे। 18th century में कौन होते थे? राजा होते थे, ठीक है। अब ये राजा कैसे होते थे? कुछ राजा, few kings, few monarchs, they were very considerate towards their citizens. Okay, out of 10 to 20 monarchs in a dynasty, 2 or 3 monarchs would have been very celebrated ones, ठीक है, जिन्होंने हर एंगल पे अच्छा काम किया। But then there were many monarchs, many examples of monarchs, ठीक है, who did not do so well in their kingdom. Their kingdom did not flourish during their reign. ओके, सो ही वंडर्ड कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। फाइन, हाउ हाउ टू प्रिवेंट द मोनार्क फ्रॉम बीइंग सो despotic. ओके, हाउ टू प्रिवेंट द मोनार्क फ्रॉम नॉट टर्निंग अगेंस्ट हिज ओन सिटीजंस welfare. So he started wondering about this, and hence he is called as the political thinker. So Montesquieu was a political thinker of 18th century. He wondered how can we reform the political system so that it works in favor of the citizens. Then he propounded a doctrine which is called as separation of power doctrine. Okay, अब separation of power doctrine में उन्होंने क्या कहा कि whenever there is any person, okay, any person who is ruling a nation, like for today in India, who is ruling the country, the prime minister is ruling the country, right? So he said, whoever is ruling the country, ठीक है, all the power should not be in his hands, power should be dispersed. Okay, now कौन से powers की हम बात कर रहे हैं? So he said there are 3 powers, okay, legislative power, executive power, and third is judicial power. Fine, so he said there are 3 kinds of power: legislative, executive, and judicial. Okay, so these 3 powers should not be concentrated in the hands of a single person, it should be dispersed. Okay, so first we'll understand legislative power. Legislative power comes from the word legislation. Legislation मतलब क्या होता है? Law, ठीक है, तो लॉ बनाने का पावर ये किसके पास होना चाहिए? Then comes executive. Executive means implementing that law. Okay, ये किसी और के पास होना चाहिए। जुडिशरी, जुडिशियल पावर मतलब जजिंग कि लॉ के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। ओके, ये किसी और के पास होना चाहिए। फाइन, so Montesquieu, in order to reform the political system, proposed the doctrine of separation of power, which said 3 powers, namely legislative, executive, judiciary. These 3 powers should be separated. Okay, they should not be concentrated in the hands of a single person. Okay, अब इससे क्या होता था? राजा के हाथ में, मोनार्क के हाथ में सारे पावर्स होते थे। He used to make laws, he used to implement them, and he used to judge also, right? So we go to 18th century France, ठीक है? Now France में there was a king Louis XVI. Okay, now he made a law that any citizen, okay, if he criticizes the government, he will be imprisoned. Fine. If any citizen of the lower class has to be is harassing a person of the upper class, any citizen of lower class is harassing a person of the upper class, what can the upper class person can do? He can simply go to the court, pay some money, 10-20 bucks to the magistrate, and say that I want an arrest warrant against my own servant. Okay, this was the law that upper class people, by simply paying some amount, can get people from lower class arrested and tortured in jail.
Okay, once that warrant was taken out, nobody will know where that person went. Okay, definitely he went to some prison, but thereafter where he is, nobody will know that. So this was a law made by the king. Of course, this sounds like a very, very draconian law, right? This is a very draconian law, but this was made by the king. Now, in that era, this law was possible to be made because people did not have any rights, okay, to raise their voice against the king. If even if they rose their voice against the king would say, "I am the judge, okay, and I punish you if you raise your voice against me." This so law making power was in the hands of the king. Implementing that power through police, through army was also in the hands of the king. Judicial power, that means to judge whether this law is correct or not, that was also in the hands of the king. So the king made the law. When the people protested, he said, no, it is all right. And the law went on. Fine. So this was what? A very, very autocratic system of governance. Fine. That is why Montesquieu said कि अगर हम ये तीन powers, legislative, executive and judiciary, एक आदमी से अलग कर देंगे, then the system will get reformed, okay, and it will be favorable for the citizens. So अभी हम क्या देखते हैं? We observe separation of power in our country also. We see that हमारे country में legislature है जो law बनाता है. We have executive, prime minister and all those who implement the law. ठीक है? And then we have Supreme Court. See, now recently Citizenship Amendment Act was passed. Okay, Triple Talaq bill was passed. Fine, and similarly many bills have been passed. So many citizens do not like this law. They directly go to the Supreme Court and file a PIL. Okay, that PIL has been filed against this law. So the Supreme Court will give its verdict whether it is a good law or it is a bad law, right? Because this is possible. Why? Because of Montesquieu's doctrine of separation of power. Fine. So this is polity. Okay, we did not talk about any politician, we did not talk about any political party. We just talked how should how should the political system of a country work so that it is favorable for the citizens. Okay, now in our country the legislature can pass a law, but can it be such a draconian law like the law made by the French king? No, it is not possible because the Supreme Court is there to directly strike it down, right? So in polity we study how the governance of a country is organized. Okay, who makes the law, who implements it, who judges upon it. Okay, all these organs we will be studying about all these organs. Okay, now taking you further, okay, into greater depth. Now we'll first talk about legislature. Okay, now legislature में I just want you to wonder for 10 seconds or 15 seconds. Okay, about law making, that you have been given power to make a law. Okay, and you have to make a law upon, say, marriage in our country. Okay, you have to make a law upon marriage in your country. So how would you want that law to be framed if I give you that power to frame a law, right? So how would you try to frame that law? What will be the constituents of that law? आप अपने हिसाब से सोचोगे कि शादी ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, पैदा हुआ बच्चा उसी का शादी करा दो, या 16 साल 14 साल, इट डजंट मैटर्स, ठीक है, इफ यू लाइक समवन लेट दैट पर्सन गेट मैरिड. ओके, या कोई सोचेगा ऐसा कि नहीं, देयर शुड बी अ एज लिमिट वेयर इन पीपल गेट मैरिड, ठीक है, देयर शुड बी अ लिमिट वेयर इन दे शुड हैव चिल्ड्रन, ठीक है, यू विल मेक सच लॉ. और ओके, so just take a few seconds and wonder, अगर मैं आपको ये पावर दूं कि you have to make a law on marriage, what sort of law will you make? Okay, just wonder for 10 seconds, what sort of law would you make? You are making a law upon marriage. You will make a law about what is the age of marriage. ठीक है, will you allow polygamy? Will you allow polyandry? What is polygamy? Having more than one partner, and polyandry is having more than one husband. Okay, so will you allow polygamy? Will you allow polyandry? Yes, then you should wonder whether will you allow child marriage? Will you allow multiple children, or you limit the number of children through marriage? Would you allow extramarital affairs in marriage? Yes, there are countries wherein extramarital affairs are all right. They are not a crime. Okay, so you'll be wondering about all these things, right? So now talking about legislation, so how Indian polity, in polity we'll be talking about how this legislation is framed.
ठीक है. Now a person belonging to one community will say, okay, I will allow polygamy in my law of marriage. ठीक है. A person belonging to another community, say a person is from Meghalaya, okay, that person, if I give him the power to make law on marriage, he will say that, okay, in marriage, in marriage, the male person will be younger and the female will be older, because in Meghalaya you have tribes like Jaintia tribes. Okay, now when they marry, the woman is older than men. Usually in mainland India, we see that the male is older than female, right? By 2 or 5 years. But in Meghalaya, if you go there, the woman is elder by 10 to 15 years than the husband. Yes, this is the law there. So a person from, so in a diverse country like India, okay, a person from northeast will make such a law. A person from southern India, South India, okay, he will make different kind of a law. A person will from western and central India, means people from different parts of our country will make diverse kinds of law, right? Now, how do we make one homogeneous law which is applicable throughout the country, which is acceptable to all the people of the country? How do we make it? Yes, we have to think about it, right? That whatever law is being made upon marriage, it should be acceptable to most of the people in our country. Okay, that is why we have the legislature. Okay, in India, what we call the legislature as, we term it as parliament, right? Now in parliament, we get people, we get representatives of people elected. Okay, now these representatives, they are, why are they called representatives? Because they represent the voice of the people, right? Since they represent the voice of the people, they will give their inputs कि भाई law ऐसा होना चाहिए marriage पे, law ऐसा होना चाहिए marriage पे, ठीक है? और say if we are talking about giving rights to transgenders, okay, so few people will say कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, they will discuss, then they will arrive at a consensus and a law will be framed, right? ठीक है? This is how India works, okay? But if you take China, yes, चाइना में the politicians thought कि बहुत ज्यादा population बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? चाइना में one child policy लाएंगे, राइट? वहां पे ऐसा कुछ हुआ कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया लेजिस्लेचर में, उनसे इनपुट्स लिया गया और फिर एक लॉ बनाया गया. वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं. वहां पे पॉलिटिशियंस को लगा नहीं भाई, वी हैव टू कट डाउन आवर पॉपुलेशन and we should start with this one child policy. So suddenly one child policy was enforced in China. Okay, women who were pregnant again, they were forced to abort their babies. Okay, now they are facing social implications of their law. क्या है वहां के social implications? First thing, वहां पे जो बच्चे हैं, they don't know brotherhood. ठीक है, भाई क्या होता है, क्योंकि एक ही बच्चा हुआ ना सबको, right? Every couple has just one child. ओके, सो उसको नहीं पता कि भाई कौन होता है, उसको पता ही नहीं भाई का प्यार क्या होता है, व्हाट इज द लव ऑफ अ ब्रदर, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप विद अ सिस्टर. दे डोंट नो हु इज अ ब्रदर, हु इज अ सिस्टर. दे डोंट नो हु इज एन अंकल, हु इज एन आंट, बिकॉज उनको पता है कि हाँ मेरे पास पापा है, मेरी मम्मी है और मैं हूँ, राइट? दे the only kind of relationship they know is friendship. Yes, friendship, spouse and a partner and a child, यही relationship उनको पता है. They don't know who is uncle, who is aunt, mama, भतीजा, भांजा. They are not aware of these things. Social relations are a mess in China right now. Okay, all they care about is some friend or their partner. Okay, this is the implication. Secondly, now in China there is a province called as Xinjiang. Okay, Xinjiang is a Muslim dominated province in China. सुना होगा, न्यूज में अभी बहुत ज्यादा चल रहा होगा, है ना? वाइगुर मुस्लिम बोला जाता है उनको, ठीक है? नाउ इन मुस्लिम कम्युनिटी, okay, they do not, in Muslim community they strictly follow a provision that you must not restrict child. ठीक है, जितने बच्चे हो रहे हैं होने दो, ठीक है? This is God's gift to us. Okay, so when China came out with its one child policy, this was totally against the people of Xinjiang. Okay, and when they rose their voice against Chinese political leadership कि भाई this is against our religion, okay, this will hamper our religious practice, this will hamper our generation to come, ठीक है? But did the political leadership listen to them? No, not at all. They simply arrested people, detained people, tortured them into submission. Okay, so China में, I'm making this clear कि legislature is what? Law making. And the process of law making that we follow in India, the process of law making that is being followed in China are altogether different, right? वहां पे political leadership अपने whims के हिसाब से law बनाते हैं, यहाँ पे
we try to take opinions of diverse groups of people, so that whatever law we make, it is acceptable for most of the people. I don't say ki all the people will accept that law, but most of the people will accept that law, right? इसी वजह से we all know कि इंडिया की population बहुत ज्यादा है. We are now 135 crore people. We'll be surpassing China by 2030 और 2025. इस तरीके से हम दौड़ते रहे आगे, है ना? तो हम विल बी सरप्राइजिंग, करण जौहर की मूवीज देखते रहे तो 2025 तक ही हम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है? चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी. तो इवन वी नो कि भाई हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रही है? मेनी पीपल आर डिमांडिंग कि भाई ब्रिंग वन चाइल्ड पॉलिसी, इफ नॉट वन चाइल्ड पॉलिसी एटलीस्ट ब्रिंग टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया. Okay, many people are saying that central government should come up with such a policy, but is the government making such a rule in India? No. Why? Because we have such a diverse heterogeneous composition of cultures कि accept नहीं करेंगे लोग इस चीज को, right? और accept भी कर लिया, enforce कैसे करेंगे? चाइना में क्या होता है कि forcibly enforce कर दिया जाता है law को, हमारे country में वैसा possible नहीं है. Okay, so in polity we'll be studying about law making process. What is the law making process in India? ठीक है? What is the law making process in China? What is the law making process in UK? We'll be comparing it क्योंकि हमारे syllabus में एक topic है that comparison of constitutions of the world. ठीक है? So we'll be comparing कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है law making में. Is this clear, everyone? I hope so. Legislature per se, I have given you a glimpse. What is Indian polity? Okay. Then we hop on to the judiciary. ठीक है? Now talking about judiciary, अभी news में बहुत थे CGI हमारे. Who was the recent CJI? Ranjan Gogoi, right? जिन्होंने अयोध्या का verdict दिया. Yes, if you have heard about it, please students raise your hands. Ranjan Gogoi, news क्या था रंजन गोगोई के बारे में? कि yes, Ranjan Gogoi was nominated to the Rajya Sabha recently, right? है ना? रंजन गोगोई कौन है? Chief Justice of India. Chief Justice मतलब अभी के लिए समझिए, he is the supreme most judge or was the supreme most judge in India, right? Ranjan Gogoi. Now, Ranjan Gogoi was in the judiciary. He was recently nominated into Rajya Sabha. Okay, so ये एक इशू बन गया था. अब रंजन गोगोई को गवर्नमेंट, वो तो जज थे, उनको गवर्नमेंट ने क्यों लेजिस्लेचर में लाया, राज्यसभा में क्यों लाया? ओके, रंजन गोगोई ने अयोध्या वर्डिक्ट के लिए फेवरेबल जजमेंट दिया, ट्रिपल तलाक के लिए फेवरेबल जजमेंट दिया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फेवरेबल जजमेंट दिए. इस वजह से लोगों ने उंगलियां उठाई कि यहाँ पे क्या चल रहा है. जजेस अगर अच्छा काम करेंगे पॉलिटिशियंस के लिए तो पॉलिटिशियंस उनको उठा के लेजिस्लेचर में डाल देंगे. इससे क्या होगा, उनका पे पैकेज बढ़ जाएगा, उनका प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, राइट? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनके बढ़ जाएंगे, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी. ओके, तो जुडिशरी में जब हम जाएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे कंट्री में जुडिशियल सिस्टम कैसा है. हमारे कंट्री में हमने देखा एक जज जो है वो जुडिशरी से हॉप ऑन कर सकता है लेजिस्लेचर में, ठीक है? क्या ये सेम चीज यूएस में हो सकता है? यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट है, राइट? क्या यूएस का सुप्रीम कोर्ट का जज वो यूएस के पार्लियामेंट, वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस. ओके, क्या यूएस के सुप्रीम कोर्ट का जज यूएस के कांग्रेस में जा सकता है? ठीक है, अब कांग्रेस में कब जा पाएगा वो? जब ऑफ कोर्स थोड़ा फेवरेबल रूलिंग्स वगैरह देगा. क्या ऐसा पॉसिबल है यूएस में? ओके, ये हम देखेंगे. ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. यूएस में ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ओके, कि जुडिशरी का मेंबर जाके लेजिस्लेचर में बैठे. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन इंडिया, लेकिन हमारे कंट्री में ये फॉलो हो रहा है. तो इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है? अब हर जज, क्योंकि एक सीजेआर रंजन गोगोई को मिल गया राज्यसभा में सीट, हर जज क्या करेगा, को हर जज एक फेवरेबल रूलिंग पास कर देगा, है ना, रूलिंग पार्टी के लिए, ताकि उसको रूलिंग पार्टी उठा के कहाँ पे डाल दे? राज्यसभा में. और ऑफ कोर्स सारे बेनिफिट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे उनके लिए, है ना? पे, पर्क्स, ऑल दोस थिंग्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ऑल दोस विल इंक्रीज, राइट? तो हर जज यही काम करने लगेगा. इज इट अ गुड सिस्टम टू गेट जजेस फ्रॉम जुडिशरी नॉमिनेटेड इनटू लेजिस्लेचर? इज इट अ गुड सिस्टम? सेकेंडली, अगर दूसरा एंगल देखा जाए, इसका पॉजिटिव क्या है? ठीक है, पॉजिटिव ये है कि इफ मेंबर ऑफ जुडिशरी गोज इनटू द लेजिस्लेचर, मान लो लेजिस्लेचर में एक लॉ बन रहा है ना, वो पहले ही उठ के बोल देगा, भाई आपका ये लॉ तो आप बना रहे हो, मेकिंग दिस लॉ, बट दिस लॉ विल गेट चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट विल क्वैश इट. सिंपली ही कैन से दैट, राइट? वो सीधा बोल देगा कि भाई दिस लॉ इज इनकरेक्ट ओवर हियर लीगली, ठीक है, सो लेट अस करेक्ट थिंग्स ओवर हियर इन द लॉ. तो दिस वे क्या हो जाएगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस अपनी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जजेस ऑलरेडी बैठे हुए हैं लेजिस्लेचर में, है ना, वो अपने लीगल इनपुट देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, राइट?
तो ये एक बेनिफिट भी हो सकता है। सो इन पॉलिटी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट कि हम जुडिशरी को अपने कैसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। शुड वी अलाउ जजेस फ्रॉम जुडिशरी टू गो इनटू लेजिस्लेचर, या शुड वी अलाउ पीपल फ्रॉम लेजिस्लेचर टू गो इनटू जुडिशरी, शुड वी अलाउ दिस सिस्टम और नॉट? ओके, सो वील बी स्टडिंग अबाउट ऑल दिस। देन हमने लेजिस्लेचर डिस्कस कर लिया, हमने एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं हम जुडिशियल डिस्कस कर लिया, अब बच गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हमारे कंट्री में एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ एनफोर्स करता है, और जो लॉ एनफोर्स करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है एक कंट्री की, ठीक है। हमारे कंट्री में वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। यूएस में कौन लॉ एनफोर्स करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हु इज डोनाल्ड ट्रंप? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? यस, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, राइट। ओके, चाइना में जाते हैं हम, चाइना में जी जिनपिंग, हु इज ही? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? ही इज डेफिनेटली प्रेसिडेंट देयर, ठीक है। यूके में चले जाते हैं, बोरिस जॉनसन, ही इज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट? ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हम बाकी सारे कंट्रीज में क्या देख रहे हैं? जापान में भी चले जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो जापान में प्राइम मिनिस्टर है, यूके में प्राइम मिनिस्टर है, यूएस में प्रेसिडेंट है, चाइना में प्रेसिडेंट है। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सब है, राइट। तो क्यों है ऐसा? हमने दोनों को ही क्यों लाया, राइट। अभी आप लोग यूपीएससी में आ गए हो, इस वजह से आपको प्रेसिडेंट का नाम पता होगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंटली? ऑल आर आलिया भट्ट सिटिंग ओवर हियर। Ramnath Kovind. Yes, yes, please, yeah, at least I should see lip syncing. Okay, lip Ramnath syncing. Kovind. Yeah, yes. Okay, Ramnath Kovind. Once a person had asked Alia Bhatt, na, who is the president of India, she did not knew. So don't be that kind of a person, okay? Yes. So Ramnath Kovind is the president of India. Layman को पकड़ के पूछोगे president का नाम बताओ, वो बता पाएगा? वो बोलेगा मोदी, है ना। वो क्या बोलेगा? मोदी है हमारा प्राइम मिनिस्टर। सीएम कौन है? मोदी। यस, कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। यस, बहुत लोग हो महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में भी आप चले जाओगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई। न्यू दिल्ली क्या है? पता नहीं। न्यू दिल्ली, हाँ, वो भी एक स्टेट है। यस, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र क्या है? पीपल वोंट नो। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमारे कंट्री में हम क्या देखते हैं? प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट को कोई जानता नहीं है ज्यादा। किसको जानते हैं लोग ज्यादा? प्राइम मिनिस्टर को। तो ऐसा क्यों, राइट। बाकी सारे कंट्रीज में तो या तो प्रेसिडेंट है या तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे कंट्री में दोनों है। लेकिन दोनों होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ज्यादा जाने जाते हैं, प्रेसिडेंट उतने नहीं जाने जाते हैं, है ना। तो ये हमारे कंट्री का सेटअप है ऐसा। ओके, तो दिस वाज जनरल ग्लिम्स कि हम पॉलिटी में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे लेजिस्लेचर, हम देखेंगे जुडिशरी, हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, फाइन। अब एग्जीक्यूटिव हमारे कंट्री में दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये पॉलिटिशियंस हो गए, 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो गई? हमारी ब्यूरोक्रेसी, है ना। हम सब आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो ये किसमें आ गए? ब्यूरोक्रेसी में। और ब्यूरोक्रेसी को क्या बोला जाता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। तो हमारे कंट्री में दो टाइप के एग्जीक्यूटिव हमें दिखते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ऐसा क्यों? ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा फोर्स किया कि नहीं, वी शुड कंटिन्यू विद द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज व्हाई ब्यूरोक्रेसी, अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इज देयर इन इंडिया, ठीक है। अ वेरी वेरी फुल फ्लेजेड वास्ट एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज प्रेजेंट इन इंडिया। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बाकी बहुत लोग बोल रहे थे इसको अबॉलिश कर दो, कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो वील सी, वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। वैसे अगर किसी के सामने ऑफिसर्स की बात करो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करो, तो क्या पिक्चर नजर आता है? बहुत क्लीन इमेज आता है कि करप्ट इमेज आता है? बहुत ही करप्ट इमेज आता है, राइट। अगर उनको बोला जाए, ऑप्शन दिया जाए कि ब्यूरोक्रेसी हटा देना है, वो लोग बोलेंगे हाँ भाई करो, है ना। वैसे ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, करप्ट हैं, बैठे हुए एकदम, हटा दो। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, राइट। तो ये क्यों रखा है? अच्छा, अब ये सारी चीजें हम पॉलिटी में बात करेंगे, ठीक है, कि एक कंट्री गवर्न कैसे हो रहा है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी कैसा है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है हमारे कंट्री का, ठीक है, ये किसने बनाया ऐसा? ब्रिटिश बना के गए थे? यस, किसने बनाया? मुगलों ने बनाया ऐसा? यस, हु मेड दिस सिस्टम कि हमारे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट होगा, हमारे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होगा, नीचे हाई कोर्ट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में परमानेंट होंगे, टेम्पररी होंगे,
ये किसने बनाया हमारे लिए? ब्रिटिश ने। Yes, I'm getting variety of answers. Okay, some are saying British, some are saying Dr. Ambedkar. Okay, yes, very good. Keep on commenting, please. I want to know your views. ये किसने बनाया हमारे लिए? यूएस ने बनाया हमारे लिए? इस किसने बनाया और कब बनाया? ऐसा कब से हम ऐसे रूल किए जा रहे हैं? पहले हम ऐसे ही थे एंशिएंट जमाने में? यस, जवाहरलाल नेहरू, आई एम गेटिंग आंसर। क्या एंशिएंट जमाने में हम ऐसे ही थे? पार्लियामेंट हुआ करता था देश में, यस, प्राइम मिनिस्टर होते थे, सुप्रीम कोर्ट होता था। क्या एंशिएंट जमाने से हम ऐसे थे? यस और नो स्टूडेंट्स? नो नो नो, राइट? हम एंशिएंट जमाने से ऐसे तो थे नहीं। एंशिएंट में हमारे पास राजा होते थे, राइट? मेडिवल में मुगल्स थे, उसके पहले दिल्ली सल्तनत था, ठीक है? तो हम राजाओं के रूल में थे। तो ऐसा किसने बनाया? पार्लियामेंट लाके खड़ा कर दिया हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट लाके खड़ा कर दिया। किसने ऐसा किया? इसका स्टार्ट ब्रिटिश ने दिया हमें, राइट? स्टार्ट किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया, ठीक है? एक रूडिमेंट्री लेजिस्लेचर, एक रूडिमेंट्री जुडिशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम उन्होंने हमारे कंट्री में लाके एस्टेब्लिश किया, ठीक है? लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम हम देखते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का, वो किसने बनाया? वो हमने खुद ने बनाया। कब बनाया? आज से 70 साल पहले, ठीक है? तो ये जो हमारा करंट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। कब बनाया? 70 साल पहले। ऑफ कोर्स हम तो थे नहीं 70 साल पहले, कि कोई था यहाँ पे 70 साल पहले जिंदा, है ना? तो उस समय हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये आई गॉट एक्सीलेंट आंसर्स, जवाहरलाल नेहरू, बाबा अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल एंड मेनी मोर पीपल हैव बीन नेम्ड। ओके, तो ये लोगों ने हमारे लिए बनाया ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? मतलब हम जो प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हैं, वो कुछ लोगों ने जानबूझ के ऐसा बनाया, सोच समझ के ऐसा बनाया हमारे लिए। ओके, तो उनके पास ये ऑप्शन था। तभी भी यूएस कब बना? Yes, when did United States of America come into existence? Everybody knows America was a colony of Britain, just like we were a colony of England. Yes, America was also a colony of Britain. ठीक है? When did 13 colonies? When did America get independence? Okay, 4th July, late 16th century. Okay, I don't know the year. Okay, America got independence 1783. ठीक है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ गया था 1783 में, दे गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस 1783, वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947, लगभग 200 साल का गैप है ना? तो हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तब तक अमेरिका आजाद भी था। इनफैक्ट अमेरिका सुपर पावर बन गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, राइट? ठीक है, तो अमेरिका एग्जिस्ट कर रहा था, चाइना भी एग्जिस्ट कर रहा था, है ना? तो हमारे लोगों के सामने ऑप्शन था, या तो हम अमेरिकन सिस्टम अडॉप्ट कर लेते, या तो हम चाइनीज सिस्टम अडॉप्ट कर लेते, है ना? राइट? हु इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड करंटली, इंडिया और यूएस? यूएस। हु इज मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर, यूएस और इंडिया? यूएस। हु इज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर, यूएस और इंडिया? यूएस। हु इज सोशली मोर लिबरल, इंडिया और यूएस? यूएस। जुडिशरी पर से, which judiciary is better, Indian judiciary or supreme or US judiciary? Of course US judiciary, right? Where is corruption less, India or US? Corruption is less in US, right? So everything is better in US. तो क्यों नहीं यूएस का सिस्टम अडॉप्ट किया हमारे लोगों ने? यस, अडॉप्ट कर सकते थे ना? यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट बना देते, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे, ऐसे, है ना, रोनाल्ड रेगन जैसे स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट्स जो अपने हिसाब से पूरा देश चलाते, तो अभी हमारा भी कंट्री शायद अमेरिका बन गया होता। चलो छोड़ो, अमेरिका तो 200 साल पहले आजाद हुआ था। चाइना, वो हमसे when did China become the China of today? In 1950, right? So we can say China got independence, or China of today was formed when? In 1949, 1950, yes, 1949 we can say, ठीक है? So China 1949 में, as we know China today, it was formed in 1949, 1950, ठीक है? तो 2 साल बाद ही हमसे फॉर्म हुआ है। लेकिन हु इज मोर पावरफुल इकोनॉमिकली, हु इज मोर पावरफुल, चाइना और इंडिया? न्यूज चैनल वाले क्या बोलेंगे? इंडिया पावरफुल है, इंडिया से डर गया चाइना। यस, मिलिटरीली हु इज स्ट्रॉन्गर, चाइना और इंडिया? चाइना। चाइना। सब लोग तो बोल रहे हैं वॉर कर देना चाहिए, चाइना को ड्रैगन को उड़ा देना चाहिए, ब्लास्ट कर देना चाहिए ड्रैगन को।
Are we in a position to destroy China? No. Oh, okay. So why are people hyping so much about a war with China? कि चाइना को खत्म कर देते हैं, तिब्बत को ले लेते हैं, तिब्बत हमारा है. Okay. So we can see कि economically China is more powerful than us, right? Militarily China is more powerful than us. Development के हिसाब से बात किया जाए तो we are on the same level, ठीक है? But still China is more ahead than us infrastructure wise देखा जाए, ठीक है? इस तरीके से अगर हम सिर्फ अपने फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी, ठीक है? फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर्स. इंडिया के पास कितने डॉलर्स हैं? हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स मिलता है ना, ठीक है? इंडिया के पास कितना डॉलर है फिलहाल? 500 बिलियन डॉलर है. कितना है? 500 बिलियन डॉलर टोटल आरबीआई के पास. इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेक्स, ठीक है? 500 बिलियन डॉलर. चाइना के पास कितना है? बस अंदाजा लगाइए. 600 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर. चाइना हमारे पास कितना है? 500 बिलियन डॉलर. चाइना के पास 3,500 बिलियन डॉलर. कितना है? 3,500 बिलियन डॉलर. 3,500 बिलियन डॉलर फॉरेक्स है चाइना के पास. Yes, nearly 4,000. Okay, we will get different estimates on different websites. Yes, 3,500 बिलियन डॉलर चाइना's forex. हम आर्म्स खरीदते हैं, ये सभी को पता है. इजराइल से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं ना. और उसका पेमेंट कैसे करना पड़ेगा हमें? डॉलर्स में, राइट? डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा. तो हमारे पास है 500 बिलियन डॉलर और चाइना के पास है 3,500 बिलियन डॉलर. कौन सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद पाएगा? चाइना. कौन सबसे ज्यादा टैंक्स खरीद पाएगा? चाइना. लेटेस्ट मिसाइल कौन खरीद पाएगा? चाइना. यस, जहां हम एक बंदूक खरीदेंगे वहां पे चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा बंदूकें खरीद लेगा, राइट? सो हु इज मिलिटरली पावरफुल? ऑफ कोर्स चाइना. यस, चाइना इज आल्सो अ वेपन इंपोर्टर. Okay, China is also a weapon importer. It has its own inbuilt capacity, but China is also a weapon importer. So we can see कि China as we know today has been formed just in 1949, 2 साल बाद हमारे, है ना? But it is economically more prosperous, it is developmentally more ahead than us, it is militarily more ahead than us. तो हमारे लोगों ने चाइना का सिस्टम क्यों नहीं फॉलो किया? जवाहरलाल नेहरू तो सोशलिस्ट ही थे, है ना? चाइना जैसा हमारी कंट्री को बनाया था, आज हमारा पॉपुलेशन इतना होता? वन चाइल्ड पॉलिसी हमने भी ला दिया होता तो पॉपुलेशन इतना होता हमारा? नहीं होता, right? We are all staying in Mumbai. We know why COVID is spreading so much in Mumbai, because of the population density, है ना? It is spreading so much. So why didn't our people adopt Chinese system of governance in India? So all this has reasons. Okay, उन्होंने जानबूझ के चाइना का सिस्टम इंडिया में नहीं लाया, जानबूझ के यूएस का सिस्टम इंडिया में नहीं लाया. There were multiple reasons. Okay, so we'll be talking about all this कि भाई कैसा सिस्टम हमारे कंट्री में होना चाहिए. चाइना जैसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक लॉ बन गया, सबको फॉलो करना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कुछ नहीं. यूएस जैसा फॉलो होना चाहिए कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके पास सारे पावर्स होने चाहिए, ठीक है? हाउ शुड वी फंक्शन? ऑल दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन पॉलिटी. आई होप सो आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज पॉलिटी एग्जैक्टली, है ना? आर वी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस? नो. आर वी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज? हु सेड टू हुम? आज every day you will get Rahul Baba's new statement coming up, है ना? अभी भी वो कुछ बोल के गए हैं, है ना? बोलना तो पॉलिटिशियंस का काम है ना? तो कैसे हम, मान लीजिए पुलिस हम देख लेते हैं, ठीक है? पुलिस इन इंडिया कैसा इमेज आता है पुलिस का? हमारे पुलिस का इमेज कैसा आता है? खाकी पहने हुए हैं, हाथ में डंडा, है ना? और पेट इतना बाहर ऐसे निकला हुआ है. यस, कई सारे ऐसे ही होते हैं ना, मोटू से. और क्या मांग रहे हैं हमसे? पैसा. तो हमारे सामने इंडियन पुलिस का इमेज कैसा आता है? इस तरीके का. नाउ कंपेयर इट विथ यूएस पुलिस. यस, फिटनेस इज एट द पीक, राइट? डंडा होता है उनके पास. किसी भी अमेरिकन कोई भी हॉलीवुड मूवी देखो, वहां का हवलदार डंडा लेके आता है. क्या लेके आता है? शॉटगन प्लस वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? इलेक्ट्रीफाइंग मशीन एंड ऑल, राइट? वो कुर्सी, वो बाइक से आता है कि वो अपना कार लेके आता है? दे हैव बीन गिवन कार, ठीक है? सो हमारे कंट्री का पुलिस हमने देखा, यूएस का पुलिस हमने देखा. विच इज मोर एफिशिएंट?
US police, why is it more efficient? Why? Yes, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, है ना। तो हमें ये सारा चीज एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 2007 में प्रकाश सिंह जजमेंट दिया है, ठीक है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने हैं, बहुत जरूरी है पुलिस रिफॉर्म्स लाना, ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म्स लाना बहुत ही जरूरी है, और इस वजह से गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है, पुलिस रिफॉर्म्स पे, ठीक है। तो क्यों? ताकि हम भी अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस की तरह कर पाए, हमारा भी पुलिस फिट एंड फाइन दिखे, हमारा भी पुलिस एफिशिएंट रहे, बहुत ज्यादा करप्शन मिल रहा है हमारे भी कंट्री में, ठीक है। So we will be talking about all these things, how to reform our police so that we can make it more efficient, how to reform our defense so that our defense is more capable, ठीक है, more strong. Okay, so we'll be talking about these things in polity. Is this fine? I think so आपको glimpse मिला होगा थोड़ा सा कि polity है क्या। फाइन, हम क्या बात करने वाले हैं पॉलिसी में। ओके, यस। सो हेंस फ्रॉम हियर विल प्रोसीड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग कि ये सब कहाँ पे बताया गया है, कि है ना, इंडिया के पास पार्लियामेंट होगा, लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी में। तो इंडियन पॉलिटी कैसा होने वाला है, ये सब एक बुक में बताया गया है। दैट बुक इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन या हिंदी में उसे बोले संविधान। ओके, सो वी हैव अ बुक कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या संविधान, भारत का संविधान, which describes about our political system, कि हमारा political system ऐसा होने वाला है, हमारा political system इस तरीके का रहेगा, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर रहेंगे, प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहेंगे, ठीक है। So when we'll try to understand Indian polity, the first thing that we have to study is the Constitution of India. Okay, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वही बताता है हमें कि हमारा कंट्री कैसे गवर्न होगा। इज दिस फाइन? नाउ ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है, ठीक है। अब ये बुक दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो, yes students, so to understand Indian polity we have to study this book, the Constitution of India. Okay, I hope so everyone is able to see the book. Okay, yes, तो हमें पॉलिटी पढ़ने के लिए ये बुक हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसी में सारी चीजें बताई गई हैं। अब ये बुक है, हर बुक में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं और अपेंडाइसेस होते हैं, राइट। तो इस बुक के चैप्टर्स को क्या बोला जाता है? पार्ट्स। क्या बोला जाता है? पार्ट। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 22 पार्ट्स। ओके, सो दिस बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स, ठीक है। एंड देन अपेंडिक्स होता है, वो देखा होगा लास्ट में आप लोगों ने, है ना, कुछ अपेंडाइसेस होते हैं। तो उन अपेंडाइसेस को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स। क्या बोलते हैं हम? शेड्यूल्स। ओके, so in this book of Constitution of India there are 22 parts and 12 schedules. Okay, now this is the ABCD of Indian polity, है ना। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आज मैं बता रही हूँ आपको कि कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल्स हैं, ये बाद में आपको याद नहीं रहेंगे। 2-3 लेक्चर बाद पूछूंगी ना तो ये नहीं याद रहेगा, ठीक है। so just make a note of it. So in the Constitution of India how many parts are there? There are 22 parts. Okay, how many schedules are there? There are 12 schedules, ठीक है। अब जैसे ये हर एक बुक में एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, प्रीफेज, है ना, तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है एक इंट्रोडक्टरी पेज, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीएम्बल। ओके, so in the book called Constitution we have the preamble, we have 22 parts and we have 12 schedules. Okay, so in Constitution we have the preamble, we have 22 parts and we have 12 schedules. Okay, अब जैसे कि हर बुक में हर एक चैप्टर होता है, चैप्टर कैसे लिखी जाती है? पैराज में लिखी जाती है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पैराज हैं, बट दे आर ऑल नंबर्ड। तो हम इन नंबर्ड पैराज को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, हम इन नंबर्ड पैराज को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ओके, सो we have preamble, we have 22 parts. 22 parts में how many articles we have? 395 articles. Okay, how many articles? 395 articles. So the Constitution of India has the preamble, 22 parts, 395 articles and 12 schedules, ठीक है। Okay, when you Google search, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 25 parts and 445 articles हैं,
ठीक है, गूगल सर्च में ये बताएगा। नाउ व्हाई इज इट सो, बिकॉज ये 22 पार्ट्स है ना, इसमें भी सब पार्ट्स है, जैसे कि पार्ट 4 है तो पार्ट 4A भी है, पार्ट 9 है तो पार्ट 9A है, पार्ट 9B है, पार्ट 14 है तो पार्ट 14A है। ठीक है, तो उन्होंने ये पार्ट 14A इसको क्लब करके 25 बोल दिया है। इज दिस क्लियर? और आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ 395, लेकिन गूगल सर्च करोगे तो 445 आर्टिकल्स आएंगे या 450 आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्यों 445 450 आर्टिकल्स, क्योंकि हर एक आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो उनको जैसे 51 है तो 51A भी है। ओके, तो उन्होंने उसको भी ऐसे आर्टिकल्स में ही काउंट कर लिया, हम वैसे नहीं कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो 51A 51 है तो हम 51 ही देख रहे हैं, 51A हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से 395 आर्टिकल्स हैं। फाइन। तो in the book called Constitution of India we have the preamble, we have 22 parts जिसमें 395 articles हैं। ठीक है, and we have 12 schedules। तो अगर हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, हमें ये बुक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्न होती है एक्सेप्ट फॉर मोनार्की। सऊदी अरेबिया क्या है? मोनार्की, राइट? वहाँ पे किंग का रूल है। ठीक है, तो वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी हर कंट्री में आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। चाइना का भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो एवरी कंट्री एक्सेप्ट विच इज अ मोनार्की हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या पता चलता है कि ये कंट्री कैसे गवर्न हो रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि हमारे कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे यूएस का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कब लिखा गया था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन? 1787 में। Okay, UK is a parliamentary monarchy। Okay, वहां पे monarchy है, but it is also parliamentary। Okay, so UK में US का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? यस, there are hardly 9 articles। Okay, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 9 आर्टिकल्स। ठीक है, अब मैं आर्टिकल्स पे क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ? क्योंकि हमें ये आर्टिकल्स लर्न करने रहते हैं यूपीएससी में। ओके, हर एक नंबर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आर्टिकल 1 क्या है 2 क्या है, ओनली द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, so to know Indian constitution, to know Indian polity, we have to be thorough with the book। We have to be thorough with a book called as Indian Constitution। ठीक है, ओके। अब मैंने बताया कि इसमें चैप्टर्स होते हैं, तो कितने चैप्टर्स हैं या कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इन पार्ट्स में क्या लिखा गया है? ओके, यस स्टूडेंट्स, डू यू वांट अ ब्रीदर ऑफ 5 minutes? प्लीज रेज योर हैंड। सन्वी, हर्ष, बिकॉज कंटिन्यूअस हियरिंग माइट बिकम वेरी वेरी मोनोटोनस, है ना, सुनते रहना सुनता रहना। Okay, if you want a breather, please raise your hand. No offense in it. Okay, I won't take any offense. This is how we proceed in class also. Okay, because I want your full attention. Okay, so if 5 minutes break, okay, okay, so I'll continue here. Okay, yes, so we'll be studying about Indian polity, Indian constitution. ठीक है, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे, इसमें है 22 पार्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, it says that India is a it says union and its territories। ठीक है, पार्ट 1 का टाइटल क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मतलब पार्ट 1 हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, मतलब इंडिया की टेरिटरी कैसी होगी। इज इज फाइन? ठीक है, नाउ इंडिया की टेरिटरी, अभी हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? यस, वी हैव 28 स्टेट्स, है ना। जम्मू एंड कश्मीर गया, कितने यूटीज हैं? पहले 7 थे, अब 2 और आ गए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, राइट? क्या ये हमेशा से ऐसे ही था हमारे कंट्री में? नहीं। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट शेयर अ स्क्रीन विथ यू। Yes students, so this is British India। okay,
This is British India. So we had entire Pakistan in India, we had Bangladesh in India, okay, till we can say 1935. Burma was also, Myanmar was also a part of India. See, you can see it in yellow color, okay. So आज का जो, yes, so आज का, okay, so I'll be explaining. आज का जो इंडिया है, क्या वो इस तरीके से दिखता है? नहीं, ये ब्रिटिश इंडिया है, ओके. इट हैड पाकिस्तान, इट हैड बांग्लादेश, इट हैड म्यांमार आल्सो इन इट, ठीक है. और बीच बीच में आप देखोगे कुछ ऐसे ग्रे ब्लैक स्पॉट्स हैं, ठीक है. सो व्हाट आर दोज आर किंगडम्स, ओके, किंगडम्स रूल्ड बाय प्रिंसेस, ओके. So there are certain gray parts in the mainland India. Those are what kingdoms which were ruled by princes. Okay, so this is British India. Now British India was British India also classified into states and UTs just like we have India today? No. ठीक है. जब ब्रिटिश रूल करते थे हमारे ऊपर, तो हमारा जो टेरिटरी था वो क्लासिफाई होता था. पहला गवर्नर्स प्रोविंस, ओके. तो सबसे पहला क्या होता था? गवर्नर्स प्रोविंस. सेकंड यूज्ड टू बी chief commissioners province. Third used to be princely states. Okay, so when British ruled India, this was the territory of India. Okay, and it was classified not as states and UTs, rather as governors province, chief commissioners province, and princely states. Okay, when did India become independent? 1947. Okay, 1947 में भी, my dear students, we were not classified into states and UTs. ठीक है, हम स्टेट्स और यूटीज में नहीं थे. इनफैक्ट हमारे पास ग्रुप ए स्टेट्स थे, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेट्स थे. ओके, सो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर क्लासिफाइड एज, हमारा टेरिटरी कैसे क्लासिफाई होता था? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में. इज इट क्लियर? ठीक है. कब फिर ये स्टेट्स और यूटीज में बन गया? तो ये हमें पार्ट 1 में बताया जाता है. ओके, सो वी आर स्टडिंग अबाउट पार्ट 1. What is the title of part 1? Union and its territories. ठीक है, it has 4 articles, article 1 to 4. Okay, and article part 1, Union and its territory, has to be studied with schedule 1. ठीक है, schedule 1. What is schedule 1? It is the list of states and UTs. Is this clear? List of states and UTs. So part 1 is Union. Please make a note. Part 1 is Union and its territories. Okay, and it has to be studied with schedule 1. What is schedule 1? List of states and UTs. ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि, अच्छा, इसमें क्या लिखा है आखिरकार? हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया, स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज मेक अ नोट, टेक योर टाइम, प्लीज मेक योर नोट. So part 1 is Union and its territories. It has to be studied with schedule 1, which is list of states and UTs. Okay, part 1 has 4 articles, article 1 to 4. Okay, part 1 has 4 articles, article 1 to 4. Okay, part 1 has 4 articles, article 1 to 4. Okay, I hope so everyone has noted it down. Okay, I'll continue from here. ठीक है. Now part 1 में हमारे टेरिटरी के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश जमाने में वी वर क्लासिफाइड एज गवर्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स. इंडिपेंडेंस के बाद में भी हम क्या स्टेट्स एंड यूटीज में थे? नहीं. वी वर क्लासिफाइड एज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टेट्स. ओके, फिर हम स्टेट्स और यूटीज कब बने? किसने हमें बनाया स्टेट्स और यूटीज में? हु मेड इट? क्या स्टेट्स ने खुद ने अपने आप को बनाया? जैसे महाराष्ट्र, एवरीवन नोज, पहले महाराष्ट्र नहीं होता था, राइट? महाराष्ट्र कुछ नहीं था इंडिपेंडेंस के पहले. अंडर ब्रिटिश इट वाज बॉम्बे प्रोविंस, राइट? बॉम्बे प्रोविंस. और बॉम्बे प्रोविंस में क्या था? महाराष्ट्र भी था और गुजरात भी था. ठीक है, महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था बॉम्बे प्रोविंस में. ठीक है, तो महाराष्ट्र तो था नहीं, गुजरात भी सेपरेट नहीं था. तो किसने बनाया महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट? खुद ने इन लोगों ने बना दिया एक्ट पास करके कि henceforth will be called this will be a state called Maharashtra. Henceforth there will be a state called as Gujarat. किसने बनाया ये?
ओके सो तो पार्ट 1 में ये हमें पता चलता है हु कैन मेक स्टेट्स, हु कैन मेक यूटीज। ओके क्या प्रोसेस है स्टेट्स और यूटीज बनाने का। ओके ये सब हमें किसमें पता चलता है, पार्ट 1 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में बताया गया है कौन स्टेट्स बनाएगा, कौन यूटीज बनाएगा और क्या प्रोसेस से बनाएगा। ओके तो अभी हमने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा है, आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है, राइट। इफ यू वांट स्टूडेंट्स आई विल गिव यू नोट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग जस्ट लिसन टू मी, ठीक है। आफ्टर से 5 or 10 minutes of explanation आई विल गिव यू डिटेल्ड नोट्स ऑफ इट, राइट। ओके सो अभी हमने रिसेंटली देखा आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। किसने किया आर्टिकल 370 अबॉलिश, कश्मीर ने किया, महाराष्ट्र ने किया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राइट। सो और जम्मू एंड कश्मीर को अब क्या बना दिया गया, पहले स्टेट था अब डाउनग्रेड करके उसे यूटी बना दिया गया है, 2 यूटी, लद्दाख एक यूटी और जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी, ठीक है। तो हमारे कंट्री में स्टेट्स के साथ ऐसा करने का पावर किसके पास है, स्टेट्स के पास है कि सेंटर के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। क्यों ऐसा, व्हाई, बिकॉज इट इज रिटन इन पार्ट 1 दैट पार्लियामेंट विल हैव द पावर, ठीक है। अभी आप मत लिखिए इसको क्योंकि मैं सीक्वेंशियली आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो इट इज रिटन इन आर्टिकल 3 दैट पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू डू ऑल दिस स्टफ विद द स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट को तोड़ के यूटी बना सकते हैं, ठीक है। यूटी को बड़ा करके स्टेट बना सकते हैं, 2 यूटी को ज्वाइन करके स्टेट बन सकता है, ठीक है। एक स्टेट का 2 स्टेट बन सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश है ना, उसको तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया, ठीक है। तो ये सब करने का पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास नहीं। क्या ये पावर मोदी के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास है नहीं, ये किसके पास है पावर, ओनली एंड ओनली विद द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अमित शाह चाहेगा कि वो बंगाल को तोड़ के 2 हिस्से में कर दे, कर पाएगा नहीं, राइट, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो ये पावर क्यों क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावर किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास। किसी होम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है। जब तक वो लोग पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी नहीं रहेगी तब तक वो नहीं कर सकते हैं कुछ। इज दिस क्लियर एवरीवन, ओके। तो पार्ट 1 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हमारे टेरिटरी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ठीक है। स्टेट्स को छोटा बड़ा है ना, उसका टुकड़ा टुकड़ा ऐसा कर सकता है, उसका नाम भी बदल सकता है। तो जैसे कि पहले पौंडीचेरी था, पुडुचेरी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तरांचल था पहले, अब वो क्या बन गया है, उत्तराखंड, ठीक है। तो ऐसे नाम भी बदल सकता है, लेकिन कौन कर सकता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। या तो अमित शाह का बस चले तो वो तो सबका नाम परिवर्तन कर दे, है ना। हर दिन एक नेमिंग सेरेमनी होगी, है ना, दिस स्टेट विल बी henceforth called as this, है ना, दिस स्टेट विल बी henceforth called as this, राइट। क्योंकि अगर उसके हाथ में पावर होता, बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन होम मिनिस्टर दैट पावर, फाइन, okay. So proceeding ahead, as I told you, during the British we were territorially constituted differently, after independence we were territorially constituted differently. तो हम स्टेट्स और यूटीज कब बने, ओके। सो स्टेट्स और यूटीज ये पहले से ही डिमांड हो रही थी। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है। एज आई टोल्ड यू बॉम्बे प्रोविंस में महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था, ठीक है। तो मान लो अगर बॉम्बे प्रोविंस के लिए लॉ बनाना है तो कौन से भाषा में लॉ बनेगा, मराठी में कि गुजराती में। मान लो गुजराती में बन गया तो महाराष्ट्रियन बोलेगा, है ना, मला माहित नाही, है ना, काय लीला है मला माहित नहीं, महाराष्ट्रियन बोलेगा, है ना। और अगर गुजराती में लॉ बना, है ना, तो गुजराती बोलेगा, है ना, मरने खबर न थी, है ना, कि क्या लॉ पास हुआ है, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता मराठी, है ना, गुजराती ऐसा बोल देगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो अगर लॉ बनाना है तो 2 लैंग्वेज में लॉ बनाना है। चलो कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट कहाँ था, हाई कोर्ट कहाँ पे था, बॉम्बे में था, है ना। अब जजेस को भी 2 भाषा आना चाहिए, अगर एक भाषा है तो काम नहीं चलेगा। रूलिंग भी देना है तो 2 भाषा में देना पड़ेगा, एक भाषा में देंगे तो काम नहीं चलेगा। पिटीशन भी सबमिट करना है, मान लो मराठी पिटिशनर है, जज गुजराती है ना, तो मराठी को फिर गुजराती में लिख के देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब ऑल दीज डिफिकल्टीज वर देयर, राइट, तो व्हेन बॉम्बे प्रोविंस वाज देयर। तो ये बहुत पहले से ही डिमांड हो रही थी कि हम प्रोविंस को कैसे ऑर्गेनाइज करें, लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज करें, लिंग्विस्टिकली मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो बहुत पहले से ही बात चल रही थी, ठीक है, कि जो भी डोमिनेंट लैंग्वेज है उस पे हो जाना चाहिए स्टेट, ठीक है। कांग्रेस ने भी 1935 दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस
ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लोकमान्य तिलक ने भी बोला था कि भाई लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनेंगे, ठीक है, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस आई पावर में, उन्होंने नहीं बनाया लिंग्विस्टिक प्रोविंस। क्यों नहीं बनाया? डिमांड है लोगों की। कांग्रेस ने आजादी के पहले खुद भी कहा है कि लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनेंगे, है ना, लेकिन बना क्यों नहीं रहे हैं? ओके, तो लोग डिमांड कर रहे थे डिमांड। इसके लिए बहुत सारी कमिटीज भी बनाई गई, जेवीपी कमेटी बनाई गई, एसके धार कमेटी बनाई गई, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होगा, जबकि कांग्रेस ने आजादी के पहले खुद ने बोला था कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाएंगे, ठीक है, और आजादी के बाद उन्होंने एकदम दरकिनारे कर दिया कि भाई लिंग्विस्टिक प्रोविंस तो बनेगा ही नहीं। दो लोग डिमांड कर रहे थे, और स्पेशल डिमांड कहाँ पे हो रहा था लिंग्विस्टिक प्रोविंस का? वो हो रहा था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आज का आंध्र प्रदेश नहीं था, वो क्या था? मद्रास प्रोविंस। तो मद्रास प्रोविंस हैड व्हाट? इट हैड तमिलनाडु, ओके, इट हैड आंध्र प्रदेश, इट हैड टुडेस तेलंगाना आल्सो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका आल्सो, ओके। तो इस तरीके का मद्रास प्रोविंस था, फाइन। तो मद्रास प्रोविंस में सबसे वी कैन से द मोस्ट स्टार्केस्ट ऑफ डिमांड्स रोज इन मद्रास प्रोविंस फॉर आंध्र प्रदेश, कि तमिल स्पीकिंग एरियाज अलग होने चाहिए, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज अलग होने चाहिए, ओके। तो आंध्र प्रदेश में डिमांड उठना चालू हो गया। नाउ देयर वाज अ लीडर, ठीक है, द नेम ऑफ द लीडर वाज ही वाज पोटी श्रीराम मल्लू। यस, नाउ दिस वाज, ये कौन थे? ये गांधी जी के अच्छे एसोसिएट थे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी के साथ हमेशा रहते थे, तो अनशन करने की आदत थी इनको, भूखे रहने बोल दो, है ना, नवरात्रि का डबल नवरात्रि ये मनाते थे, है ना, 9 दिन कुछ नहीं है, 18 दिन, 20 दिन, ठीक है, तो अनशन करने की बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस हो रखी थी। यस, गांधी जी यूज्ड टू प्रैक्टिस, है ना, ऐसे नहीं वो फास्ट पे चले जाते एक अचानक, है ना, ये वेरी वेरी ब्लैंड काइंड ऑफ डाइट, है ना, वो कुछ भी मसाला नहीं लेते थे खाने में, सादा खाने पे रहते थे, हफ्ते में एक बार, महीने में 5-6 बार वो फास्ट करते थे, तो इस वजह से उनकी कैपेसिटी थी फास्टिंग की, ओके। सो वो ये भी थे उनके साथ कोटी श्रीरामलू। अब ही वॉज द लीडर इन आंध्र प्रदेश जिन्होंने डिमांड किया कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया अलग, तेलुगु स्टेट बनाओ, आंध्र प्रदेश स्टेट बनाओ, ठीक है। नाउ अब क्योंकि जवाहर गांधी जी के साथ थे ये, तो जवाहरलाल नेहरू के भी क्लोज थे, है ना। अब 30 डेज हो गए फास्ट के, ओके, एक महीना हो गया, 40 दिन हो गया, फिर 50 दिन हो गया, जवाहरलाल नेहरू वॉजंट अग्रीइंग कि नहीं बनेगा भाई आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनेगा। देन 54th डे this person died, Poti Sriramali. Okay, thereafter the people rose in very violent mood, ठीक है, कि भाई अब तो बनना ही चाहिए, the leader had died. Then जवाहरलाल नेहरू ये agreed कि चलो ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश करके स्टेट बना देंगे, ठीक है, why? Because one important leader has died like that, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले क्यों नहीं मान रहे थे स्टेट बनाने के लिए? इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था उसके दो बेसिस थे, एक तो रिलीजन, मुस्लिम मेजोरिटी, दूसरा लैंग्वेज, उर्दू, है ना। तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने लगे हम, पहली बात तो देखिए दैट इन अ पर्टिकुलर रीजन वी हैव मोर देन 13,500 डायलेक्ट्स इन इंडिया, है ना। So the Marathi that is spoken in Bombay is altogether different than the Marathi which is spoken in Nashik, Marathi which is spoken in Nagpur, right? Clearly they distinguish, people from Nagpur definitely distinguish themselves from people from Western Maharashtra, है ना, right? So how many states would we form? If we are forming states on the basis of language, how many states would we form, right? And once these states are formed, just imagine how fragmented India would have looked, है ना, कि language, when if we start making states on the basis of language. If you go to Assam, okay, Assam में कैसा scenario है? If there are 5 villages, okay, if there are 5 villages, ये विलेज एक लैंग्वेज में बात करता है, ये विलेज दूसरा, ये विलेज इसके लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, फिर चौथा विलेज दूसरा और अलग लैंग्वेज, पांचवा विलेज अलग लैंग्वेज। नाउ दे आर ऑल आस्किंग कि दिस शुड बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस शुड बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, या हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा टेरिटरी बनाओ, जैसे कि बोडोलैंड टेरिटरी बनाई है, दार्जिलिंग में अलग चल रहा है, ओके। फिर उसके बाद करबी एंगलोंग, कच्छर, बहुत सारा ऐसा डिमांड चला हुआ है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे कितने हम स्टेट बनाएंगे? इंडिया वुड बी वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड, वुड वी गेट अ यूनाइटेड इंडिया? नो, ठीक है। देन वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब। Now Punjab is a state which is dominated by one language, one religion, Sikhism, and most of the people follow one language which is Punjabi. This script is also different, Gurmukhi script, okay.
स्क्रिप्ट मतलब वो जिसमें हम लिखते हैं, राइट? हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज आर डिफरेंट बट स्क्रिप्ट इज सेम, राइट? इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आर डिफरेंट बट एंड स्क्रिप्ट्स आर आल्सो डिफरेंट, राइट? ठीक है, सो पंजाब इज अ स्टेट व्हिच हैज Sikhism as dominant religion and it has Punjabi as their language and Gurmukhi script, totally different. तो ये तो पूरा एक अलग ही स्टेट बन जाता है ना. एंड जवाहरलाल नेहरू वाज फियरिंग एट दैट टाइम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर फियरिंग कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बना देंगे ना तो पंजाब तो पहले ही अलग हो जाएगा, जस्ट लाइक पाकिस्तान. ओके, प्लस हम कितने सारे स्टेट्स बनाते रहेंगे. Okay, that is why he was not relenting at first. He was not agreeing at first. Later, because Poti Sriramallu died and the people turned very violent, he had to agree. ठीक है, बट फिर भी गवर्नमेंट देखिए हमारी, ये भी आप, क्योंकि हम पॉलिटी क्लास में हैं तो हम ये भी समझ लें, ठीक है. गवर्नमेंट कभी भी कोई काम whimsically नहीं करती कि आज मेरा मन कर गया, ठीक है, उत्तराखंड को उत्तरांचल बना दिया, ठीक है, यूपी को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, पूर्वांचल पश्चिमांचल, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता, राइट? कुछ भी करने से काय पहले चावट आहे. Hey students, please turn off your audio. Okay. So coming to the topic, तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसे whimsically काम नहीं करती है, मन आए तो कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटी बनाती है, कमेटी उस इशू को बहुत अच्छे से स्टडी करती है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है, राइट. तो गवर्नमेंट कभी भी अपने मनचाहा काम, ऐसा हर बार नहीं होता लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है. कोई लॉ भी बनाना है तो पहले क्या बनेगा, कमेटी बनेगा, कमेटी उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो लॉ बनेगा. इज इट फाइन? ओके. So Jawaharlal Nehru also formulated a committee which is known as Fazil Ali Commission. Okay. So पहला स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश. ओके. फिर उसके बाद में सब लोगों ने डिमांड किया भाई हमारा भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाइए, तो फाजिल अली कमीशन बना. फाजिल अली कमीशन ने भी मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक लैंग्वेज और उस पर एक स्टेट बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट है क्या. जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या, जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस में 2 भाषा में बनाना पड़ रहा था लॉ, है ना, 2 भाषा में जजमेंट पास करने पड़ रहे थे, ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट है क्या. कल्चरल होमोजेनिटी देखेंगे कि ये लैंग्वेज कितने एरिया तक फैला हुआ है ना, लोग कितने बाउंड है इस लैंग्वेज से, इस बेसिस पे हम स्टेट बनाएंगे. सो आफ्टर फाजिल अली कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है, स्टेट्स एंड यूटीज वर फॉर्म, ठीक है. फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, Reorganization of States Act 1956. उसके बेसिस पे स्टेट्स एंड यूटीज वेर फॉर्मुलेटेड. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. सो ड्यूरिंग ब्रिटिश टेरिटोरियली हम आज जैसे नहीं थे, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आज की तरह नहीं थे स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है. दिस इज ओनली आफ्टर 1956 दैट स्टेट्स एंड यूटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. कौन सी यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सजेस्टेड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ठीक है. तो उसमें बहुत सारी कमिटीज का आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन, जैसे कि एस के धार, जेवीपी कमेटी, ठीक है, फाजिल अली कमीशन का भी रिकमेंडेशन रहेगा, ठीक है. और इस तरीके से फाइन. अब स्टेट्स एंड यूटीज फॉर्म किया, ठीक है. तो स्टेट्स क्या है, यूटीज क्या है, देखिए स्टेट्स और है ना, स्टेट्स अलग होते हैं. स्टेट्स में क्या होता है, देयर आर डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है. स्टेट में अपना खुद का गवर्नमेंट होती है, राइट. तो महाराष्ट्र स्टेट है, बिकॉज वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस यूटीज हैव बीन फॉर्म, ठीक है. ओके, so let me explain, let me deal with that also. States and UTs, they are governed differently. In polity, we have to understand that. States के पास खुद की गवर्नमेंट होती है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, हु इज द सीएम, उद्धव ठाकरे, ठीक है. लेजिस्लेचर है, कहाँ पे, मंत्रालय है ना, कोलाबा में, ठीक है. तो स्टेट्स का इस तरीके से गवर्नेंस होता है. अब यूटीज, हु रूल्स ओवर यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, ठीक है. कितने यूटीज है हमारे पास, 9 यूटीज करेंटली, ठीक है. उसमें से 5 यूटीज जो हैं, ठीक है, 5 यूटीज वो किसके अंडर डायरेक्टली आते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं डायरेक्टली. तो क्या उनका खुद का गवर्नमेंट है, वहां के लोग स्टेट इलेक्शंस में वोट करते हैं, नहीं करते हैं, सिर्फ सेंट्रल इलेक्शन में वोट करते हैं, ठीक है. तो अब ऐसा क्यों कुछ एरियाज को उनके खुद के लेजिस्लेचर्स दिए गए, क्यों कुछ यूटीज को प्रेसिडेंट के अंदर लाया गया, ठीक है. तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे
whichever UT is there, it is territorially small. ठीक है, you take the example of लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार, scattered islands है वो, है ना। अगर अंडमान निकोबार देखो 526 आइलैंड्स, लेकिन हार्डली कुछ आइलैंड्स इनहैबिटेड है, तो टेरिटोरियली स्मॉल है, पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। बट डाइवर्स यूटीज वेर फॉर्म बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजंस, ठीक है। जैसे कि दिल्ली, व्हाई वाज दिल्ली मेड अ यूटी, ठीक है, इट इज कैपिटल, राइट, इस वजह से उसको यूटी बना दिया। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या थी उसकी, इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री, तो किसी स्टेट को नहीं दे सकते थे, इस वजह से उसको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में डाल दिया, उसको यूटी बनाया। क्यों, देखिए वहां पे फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट्स के ऑफिस है, वहीं पे सारे एम्बेसीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी वर्ल्ड मीट्स होते हैं वो मोस्टली दिल्ली में होते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस, सुप्रीम कोर्ट वहां पे है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट वहां पे है, ठीक है, एमपीज वहां पे बैठते हैं, तो इस वजह से वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अलग है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई ये एरिया एक्सक्लूसिवली हमारे जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, ताकि हम उस तरीके से इसको एडमिनिस्टर कर पाए। उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो ज्यादा पैसे भी डाल पाएगी दिल्ली में। इफ यू गो टू दिल्ली, साउथ दिल्ली, जहाँ पे लेजिस्लेचर वगैरह, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाई, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पुट इन इट्स ओन मनी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखा जाए, मेट्रो बहुत पहले बन चुकी है दिल्ली में, है ना, क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल है वहाँ पे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, इट वाज मेड अ यूटी। नेक्स्ट अगर हम देखें चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ओके, अच्छा, दिल्ली 1991 में दिल्ली में लेजिस्लेचर दिया गया था, इस वजह से वहां पे अरविंद केजरीवाल सीएम है, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दिल्ली वाज अ यूटी ओनली 1991 में, ठीक है, थ्रू 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, दिल्ली वाज फॉर्म 1991 में। दिल्ली को लेजिस्लेचर दिया गया कि है ना, लोग इलेक्ट करेंगे, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को, एक सीएम होगा वहां का, बट स्टिल दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, ठीक है, नाइदर अ यूटी, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी दिल्ली। इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो दिल्ली को पहले यूटी बनाया गया पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के कारण, फिर उसको दिया गया थोड़ा सा स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको दिया गया उसका खुद का लेजिस्लेशन 1991 में दिया गया, लेकिन पूरा नहीं दिया गया, ठीक है। पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो दिल्ली इज नोन एज नॉट ओनली दी पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो दी रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। सबसे हिनस रेप, सबसे ज्यादा रेप कहाँ पे होते हैं, दिल्ली में होते हैं, राइट। तो इस रेप को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस वहां पे वहां के लेजिस्लेचर के अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इफ दिल्ली इज नोन एज रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस तो उनके हाथ में है, राइट। तो पुलिस काम करेगी तो रेप नहीं होंगे, ठीक है। फिर लॉ एंड ऑर्डर, वो भी उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, लैंड भी उनके हाथ में है, ठीक है। यस, इट इज आल्सो नोन एज द पोल्यूशन कैपिटल, यस, ओके। सो पोल्यूशन तो चलो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर लेंगे, ठीक है, यस। तो ये दिल्ली का स्टोरी हो गया। चंडीगढ़ क्यों यूटी बना, क्योंकि पंजाब हरियाणा बोथ वर कंटेस्टिंग इट, तो उसको हमने क्या बना दिया, यूटी बना दिया। हरियाणा चाह रहा था कि चंडीगढ़ उसका कैपिटल बने, पंजाब चाह रहा था उसका कैपिटल बने, तो हमने बोला ना तेरा ना उसका, हमारा, है ना, अब दोनों मिलके रूल करो चंडीगढ़ को, ठीक है। तो दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, ये क्यों यूटी बनाया गया, क्योंकि इनका कल्चर बहुत अलग था, पोर्चुगीज कल्चर था। गोवा वाज आल्सो अ यूटी, ओके, टिल 1987 गोवा वाज आल्सो अ यूटी। तो वहां पे कौन राज करता था, पोर्चुगीज राज करते थे, गोवा, दीव, दमन, दादरा नागर हवेली, ठीक है। तो इन सबको यूटी दिया गया, बनाया गया, क्योंकि कल्चरली बहुत अलग थे, स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज थे, और पॉपुलेशन भी बहुत कम था, ठीक है। तो इनको एक सीट देने के मतलब नहीं था, इतने छोटे पॉपुलेशन के लिए क्या लेजिस्लेचर देंगे, है ना। इफ यू हैव गॉन टू दमन एंड दीव, आप गाड़ी से उसको घूम सकते हो, 1 घंटे में घूम जाएंगे, है ना। तो इतने छोटे से टेरिटरी के लिए क्या लेजिस्लेचर देना, तो इस वजह से उनको यूटी बना के रखा हुआ है। गोवा को फिर बाद में स्टेट बना दिया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई उसकी, तो 1987 में उसको स्टेटहुड दे दिया गया, ठीक है, दो इट इज वेरी वेरी स्मॉल। फिर अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप को क्यों यूटी बनाया गया, अगेन द सेम रीजन, छोटे छोटे स्कैटर्ड टेरिटरीज हैं, प्लस पॉपुलेशन बहुत ही आइसोलेटेड है, कम पॉपुलेशन है, प्रिमिटिव पॉपुलेशन है, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब if you go to Andaman and Nicobar, there is a Sentinelese island, ठीक है, Sentinel Island is inhabited by Sentinelese people, ठीक है। अब this is considered as the
मोस्ट अनटच्ड प्लेस इन द वर्ल्ड बाय एनी ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। तो मॉडर्न ह्यूमन हर जगह जा चुका है, आर्कटिक में चला गया है, एंटार्क्टिक में चला गया है, बट सेंटिनल आइलैंड इज द मोस्ट अनटच्ड आइलैंड येट। जो भी वहां पे गया है वो मारा गया है, ठीक है। रिसेंटली ये आइलैंड फिर से न्यूज में आया था क्योंकि एक वहां पे फादर गए थे, ठीक है, प्रीस्ट गया था वहां पे, क्रिश्चियन प्रीस्ट, ठीक है, ही आल्सो डाइड। नाउ व्हाई दे डाइड? बिकॉज सेंटिनल आइलैंड इट इज इनहैबिटेड बाय सेंटिनलीज ट्राइब, ओके। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया, प्रिमिटिव मतलब ओल्डेस्ट, मोस्ट एंशिएंट ट्राइब, ठीक है। और वो इतने एंशिएंट, दे आर अनटच्ड बाय आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में जानते ही नहीं है। तो वहां पे लोग जब हेलीकॉप्टर लेके गए तो उन्होंने ना तीरों से तीर मारना शुरू कर दिया हेलीकॉप्टर पे, ठीक है। तो एक दो तीर लग भी गए लोगों को अंदर, वो लोग गिर गए, ठीक है, गिर गए। फिर वहां का बच्चा बच्चा लोगों को पकड़ के मार और देता है, ओके। वेरी वेरी प्रिमिटिव, बाहर के लोगों से उन्होंने कांटेक्ट एकदम बंद करके रखा है। इंडियन गवर्नमेंट भी वहां पे किसी भी टूरिस्ट, किसी को भी, यू कैन गो देयर ओनली विद परमिशन, ऐसे आप जा ही नहीं सकते। अ वेरी वेरी अनटच्ड एरिया, वहाँ के लोग बिल्कुल अनवेलकमिंग है आउटसाइडर्स के लिए। एक होता है ना ट्राइब्स, आउटसाइडर्स जाते हैं तो चलो ठीक है वेलकम वेलकम करेंगे, ठीक है, ठीक है। और लेकिन ये ट्राइब है ना बहुत ही हॉस्टाइल ट्राइब है, मार देते तुरंत देख के, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप क्यों ऐसे बने? क्योंकि अगेन आइसोलेटेड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वॉज दैट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है। कि अंडमान और लक्षद्वीप कहाँ पे जाते हैं? सीधा इंडियन ओशन में डेप्थ तक जाते हैं ना, वो सिक्योरिटी रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम अपने नेवल बेसिस वहाँ पे बना सकते हैं, भी नेवल बेसिस हैं हमारे, ठीक है, मैरीटाइम बेसिस हैं और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। the only special provision given to sentinels is गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया नो पर्सन विल गो देयर, दे हैव बीन लेफ्ट ऑल टू देयर ओन, जैसे तुमको जीना है मरना है रहो वहाँ पे, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउज एनीवन, यस। सो कमिंग टू द टॉपिक, इस वजह से अंडमान एंड निकोबार क्या बन गया है? यूटी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण, ओके। सो डिफरेंट यूटीज हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। अभी जेएनके क्यू यूटी बना, लद्दाख की यूटी बना, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्यू 370 अबॉलिश किया गया, ये भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट इन लेटर सेक्शंस, ठीक है। नाउ 370, आर्टिकल 370 ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 21 में आता है। तो हम पार्ट 21 के बारे में जब मैं बताऊंगी तो आपको ये सब हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि जेएनके क्यू यूटी बना, ठीक है, लद्दाख को क्यों यूटी बना। जेएनके को देखो यूटी बना लेकिन लेजिस्लेचर दिया जा रहा है, लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस इन दी क्लास henceforth, ठीक है, लेटर, यस। सो कमिंग टू द टॉपिक, तो यूटीज इस तरीके से बने, ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 इज अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इट हैज टू बी स्टडीड विद व्हिच शेड्यूल? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 इज व्हाट? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स हैं? देयर आर 4 आर्टिकल्स। आर्टिकल 3 ऑथराइजेस दी पार्लियामेंट, क्या ऑथोराइज करते हैं पार्लियामेंट को? वो आप स्टेट्स के साथ में, टेरिटरीज के साथ में जो करना है करो, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन increase the territory, decrease the territory, ठीक है, all these things, okay, yes, this was about article 3। तो कौन करता है स्टेट के साथ छिड़कानी? आर्टिकल 3। अच्छा, आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 2 बताता है कि पार्लियामेंट कैन admit establish new states in the union। what is article 2? parliament can admit establish new states in the union, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लो इंडिया के बाहर की टेरिटरीज को अगर हमें इंडिया में लेना है, वो आर्टिकल 2 बताता है कैसे लेंगे। तो कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 2 स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और टेरिटरीज इनटू द यूनियन, ठीक है। तो आर्टिकल 2 ने स्पेसिफिकली पावर किसको दिया है? पार्लियामेंट को दिया है। क्या करने के लिए? बाहर की टेरिटरी होगी, जैसे कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो गोवा द्वीप दमन हमारा नहीं था, पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। पुडुचेरी हमारा नहीं था, फ्रेंच कंट्रोल में था। तो हमने उनको एनेक्स किया, है ना, और इंडिया में शामिल कर लिया। तो ये किसने किया? पार्लियामेंट ने किया। एक्ट पास हुए थे इसके लिए। क्या मोदी होम मिनिस्टर अपने मर्जी से कर सकते हैं? नहीं। पार्लियामेंट जब तक नहीं लॉ पास करेगी तब तक वो हमारे नहीं बनेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट न्यू टेरिटरीज। डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू गिव अवे टेरिटरी टू फॉरेन नेशन?
मान लो चाइना तो डिमांड कर रही है अक्साई चीन दे दो हमें, अरुणाचल प्रदेश दे दो हमें, चाइना तो बहुत डिमांड कर रही है, राइट? तो डज पार्लियामेंट हैज दैट पावर टू गिव अवे टेरिटरी ऑफ इंडिया? ठीक है, सो आर्टिकल 3 हमने देखा, इंटरनली तो पार्लियामेंट जो मैच करना चाहे कर सकती है, एक्सटर्नली पार्लियामेंट एडमिट कर सकती है, दे सकते हैं क्या हम? रिसेंटली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था बांग्लादेश के साथ, ठीक है, लैंड बाउंड्री agreement. Yes, Mr. Ravi Rawat, you have given answer no. Parliament cannot give territory to other countries. ठीक है? Recently, land boundary agreement, 100th Constitutional Amendment Act, land boundary agreement was signed between India and Bangladesh, जिससे हमने अपने, मान लीजिए ऐसे छोटे-छोटे लैंड पार्सल्स हैं, ठीक है? छोटे-छोटे लैंड पार्सल्स, तो वो बांग्लादेश का अगर आप मैप देखोगे, इंडिया बांग्लादेश का, तो छोटे-छोटे लैंड पार्सल्स हैं, वो ऐसे मिक्सअप हो चुके हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, अपने 100 लैंड पार्सल्स बांग्लादेश को दे दिए और 51 लैंड पार्सल्स उनके हमने ले लिए, ठीक है? तो हमारा लॉस हुआ कि फायदा हुआ इसमें? हमारा लॉस हुआ, मतलब हमारी टेरिटरीज एक्स्ट्रा चली गई, है ना? 49 टेरिटरीज लैंड पार्सल्स हमारे चले गए, राइट? तो डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू गिव अवे टेरिटरी, इंडियाज टेरिटरी टू अदर कंट्रीज? यस और नो? नो, इंडिया पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है, ओके? It is resolved diplomatically. Yes, it is resolved diplomatically. It is resolved politically also, constitutionally also. I'll say how. ठीक है? तो आर्टिकल 2 में हम देखते हैं, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि पार्लियामेंट भाई तू चाहे तो बाहर की टेरिटरी अपने अंदर ले सकती है, लेकिन इंडिया की टेरिटरी बाहर नहीं दे सकती, ऐसा मेंशन, बाहर दे सकती है ऐसा मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके? So the Constitution of India does not mention that Parliament can cede any territory to foreign nations. ठीक है? तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है, तो फिर कैसे हमने दे दिया? ठीक है, इस वजह से अगर ऐसे नहीं खाया जाता तो ऐसे खा लो, है ना? तो इस वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलती है कि हम टेरिटरी दे सकते हैं, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दो और बोलो कि हम टेरिटरी दे दिए। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ओके? इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज लाया गया और ये बोला गया कि हम भाई दे रहे हैं टेरिटरी, ठीक है? वो कैसे हुआ? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही कैसे अमेंड करते थे, ठीक है? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज नहीं करने के लिए अलाउ कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं हम उसे? अमेंडमेंट, ठीक है? अब अमेंडमेंट, आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान होना चाहिए कि बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए? डिफिकल्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजी है बदलना, ठीक है? वो आगे हम देखेंगे, पूरा आपको मैं बताऊंगी, ठीक है? अमेंडमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यस, ठीक है? ऑल दोस थिंग्स, प्रोसेस, ठीक है? तो कुछ प्रोसेस, बहुत कुछ चीजें बदलना सिंपल है, कुछ चीजें बदलना बहुत टफ है, ओके? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ऐसा रिजिड भी नहीं है कि आप कुछ नहीं बदल सकते। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, नहीं बदल सकते जल्दी, ठीक है? जैसे कि अगर हम देखें, हम आजाद हुए 70 साल हुए, हमने 104 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया है, ठीक है? यूएस को आजाद हुए कितने साल हो गए? लगभग 250 साल हो गए हैं। अभी तक वो सिर्फ 25 बार बदल पाए। 250 साल में 25 बार उन्होंने बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। बदला मतलब पूरा नहीं बदला है, मतलब कुछ चीजें इंसर्ट कर दी हैं, कुछ डिलीट कर दी हैं, ठीक है? 250 साल में उन्होंने सिर्फ 25 बार ये कर पाए हैं। हमने 70 साल में कितने बार कर दिया? 104 बार, सेंचुरी क्रॉस कर दी हमने ऐसे ही, ठीक है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा अमेंडमेंट प्रोसेस होता है ना, कुछ पार्ट इजीली हो सकता है, कुछ पार्ट डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि 370 को कैसे हटाया गया, है ना? वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, लेकिन बाय हुक और क्रूक को किया गया है। ये भी सब हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं बोल रहा है कि ये नहीं कर सकते तो भी कैसे करना है, कैसा बदला जाए। और अमित शाह इसका मास्टर है ना? फ्रॉम द डे ही हैज कम टू पावर, ठीक है, ही हैज बीन चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनीथिंग। उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे नफरत है ना? उसको दे दो तो पूरा ऐसे फाड़ फाड़ के रख दे, वो बोलेगा मैं खुद मेरा बुक बनाऊंगा नया, है ना? तो ऑल दीज चेंजेस विल बी स्टडिंग, है ना? लिटरली उसने हर पार्ट में ना चेंजेस ला दिए, हर पार्ट में, जैसे कि आगे आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है?
तो पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे, तो पार्ट 1 में हमने देखा कि पार्लियामेंट बाहर की टेरिटरीज को एडमिट कर सकता है, जैसे कि गोवा, दीव, दमन एडमिट किए गए हैं। फॉर फ्रेंच टेरिटरीज थी, कुछ पोर्चुगीज टेरिटरीज थी, उनको एडमिट किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट को अलाउड नहीं है देना। लेकिन अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता तो हम किसी और तरीके से करते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज, दिस हैज बीन रिटन इन शेड्यूल 1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 4 आर्टिकल्स हैं, तो 3 और 2 तो हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 सिंपली ये मेंशन करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आई विल गिव यू इन राइटिंग। ठीक है, लास्ट 10-15 मिनट्स आई विल जस्ट डिक्टेट यू आर्टिकल 1 2 3 4 क्या है, मैं वो सब डिक्टेट कर दूंगी आपको। ठीक है, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 3 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 2 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो क्या हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा नाम हिंदुस्तान रखा है? नहीं। क्या नाम है हमारे? सिर्फ 2 नाम है, इंडिया या भारत। ठीक है, तो हम अपने आप को सिर्फ इंडिया या भारत बोल सकते हैं, हम हिंदुस्तान बोल सकते हैं नहीं। 2 जनरली लोग बोलते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर ओनली इंडिया और भारत। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये वर्ड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना, आगे हम लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी वर्ड है, बस इतना ही मेंशन है। तो आर्टिकल 1 में मेंशन है कि इंडिया जो है वो यूनियन है और उसके 2 नाम है, इंडिया और भारत। इज दिस क्लियर? तो आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 सिंपली कहता है ये कि इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन दिस पार्ट you only need a simple majority. ठीक है, if you want to change anything in this part you only need a simple majority. This is article 4, what article 4 says. ठीक है, अब ये क्या है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में जब मैं अमेंडमेंट आपको प्रोसेस समझाऊंगी तब मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स कि इंडियन पॉलिटी क्या है। ठीक है, हम पॉलिटी में बेसिकली पढ़ते क्या है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने क्या कहा, इस बीजेपी ने कहा, ये सबसे नहीं। ठीक है, हमें मतलब है हमारा कंट्री गवर्न कैसे हो रहा है, तो लेजिस्लेटिवली हमारा कंट्री कैसे गवर्न हो रहा है, पुलिस से कैसे गवर्न हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी से कैसे गवर्न हो रहा है। ठीक है, अलग अलग टेरिटरीज अलग अलग तरीके से गवर्न हो रही हैं, वो हमें पढ़ना है। इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, दूसरे कंट्रीज में क्या फॉलो होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, और इसका एक उदाहरण मैंने आपको पार्ट 1 सिखा के बता दिया। पार्ट 1 एक एक बहुत ही अलग पार्ट है जिसमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो शेड्यूल 1 है, इट इज लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, तो वो बताता है कि ये स्टेट का नाम ये है, इसका डायमेंशन ये है, ये यूटी का नाम ये है, इसका डायमेंशन ये ऐसा पूरा शेड्यूल बताता है। ठीक है, अब पार्ट 2 जस्ट ऐसे ही बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप। तो पहले हमने बताया टेरिटरी कैसी है, अब टेरिटरी में लोग जो रहेंगे उसको उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। ठीक है, ये किस में बताया गया है? पार्ट 2 में। इज इट क्लियर? इसी तरीके से पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 4 है डीपीएस, पार्ट 5 है यूनियन। पार्ट 5 इज यूनियन। यूनियन कैसा रहेगा, यूनियन में प्रेसिडेंट रहेगा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहेगा कि नहीं, ये सब कौन बताएगा? पार्ट 5 बताएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो दिस इज इंडियन पॉलिटी। फाइन, so I'll dictate notes about part 1. ठीक है, yes please start writing. I think so part 1 इतना तो आप लोगों ने लिखा होगा। part 1, title of part 1 is union and its territories. Title of part 1 is union and its territories. Title of part 1 is union and its territories. उसी के बगल में लिख दीजिए शेड्यूल 1 लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। शेड्यूल 1 लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, यस, अब आप लिखिए आर्टिकल 1। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें आप हाईलाइट करिए इंडिया, भारत एंड यूनियन, ये 3 वर्ड हाईलाइट कर दीजिए। प्लीज हाईलाइट इंडिया, भारत एंड यूनियन।
Okay. Yes. Next, Article 2. Article 2 states. Article 2. Article 2. ठीक है, डैश करके लिखिए. Parliament can admit or establish new states in the Union. Parliament can admit or establish new states in the Union. Parliament can admit or establish new states in the Union. Parliament can admit or establish new states in the Union. Okay. That is Parliament can Parliament can include foreign territories. That is, Parliament can include foreign territories. Parliament can include foreign territories like Goa, Diu, Daman, Pondicherry. Parliament can include new territories like Goa, Diu, Daman, Pondicherry. Goa, Diu, Daman, Pondicherry into India. Parliament can include foreign territories like Goa, Diu, Daman, Pondicherry into India. But there is no mention. But there is no mention. But there is no mention that Parliament. But there is no mention that Parliament can cede. Cede मतलब CEDE. ठीक है. But there is no mention that Parliament can cede. CEDE. But there is no mention that Parliament can cede. CEDE. Territories, Indian territories to foreign nations. But there is no mention that Parliament can cede Indian territories to foreign nations. But there is no mention that Parliament can cede CED Indian territories to foreign nations. Okay, Article 2 written. Okay, Article 3. Article 3. Parliament can, just simply write Parliament can increase the size, decrease the size. Parliament can increase/decrease the size of a state or UT. Parliament can increase or decrease the size of a state or UT. Parliament can increase or decrease the size of a state or UT. Parliament can increase or decrease the size of a state or UT. Change the name of 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 state or UT. Convert a state into UT or vice versa, UT into state. Convert a state into UT and vice versa. Convert a state into UT or vice versa. Yes, is it written, everyone? So Parliament can do many things: increase, decrease the size, change the name. So okay, convert the state into UT and UT into state. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट. और जब भी पार्लियामेंट कोई काम करेगी तो how will the parliament work? The parliament will only work by passing a law. A bill has to be passed, an act has to be passed. Is this clear? Now act is not passed simply.
ठीक है, it takes very long deliberative process to get passed. Is this fine? ठीक है, okay. Yes. Article 1 is somebody is asking me, okay. Article 1 is India, that is Bharat, shall be a union of states. Yes. Next article, we have completed article 3. अच्छा, आर्टिकल 3 के नीचे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका एक एलाबोरेट प्रोसेस है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही बस पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, स्टेट से थोड़ा बहुत बात करना रहता है उनको, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस 4-5 लाइन का छोड़ दीजिए, तो इससे क्या होगा, जब ये कब हम पढ़ेंगे, जब 370 के बारे में पढ़ेंगे, तो देन विल बी इंक्लूडिंग थिंग्स इनटू दिस पार्ट, ओके। यस। नेक्स्ट आर्टिकल 4. आर्टिकल 4. Article 4. To bring about changes in part 1. Article 4 is to bring about changes in part 1. Article 4. To bring about changes in part 1. To bring about changes in part 1, only a simple majority is required. To bring about changes in part 1, only a simple majority is required. To bring about changes in part 1, only a simple majority is required. Okay, students? ठीक है, so this was part 1 wholesomely. थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको और दिया था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो बस लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो प्लीज राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, territorially, comma, before independence, territorially, before independence, comma, territorially, India was constituted into, before independence, territorially, India was constituted into, before independence, territorially, India was constituted into, 3 parts are there, governor's province, governor's province, chief commissioner's province, governor's province, chief commissioner's province, and princely states. Governor's province, chief commissioner's province, and princely states. Governor's province, chief commissioner's province, and princely states. So before independence, India was territorially constituted into governor's province, chief commissioner's province, and princely states. After independence, states were classified into, after independence, states were classified into, after independence, states were classified into Group A, B, C, and D. After independence, states were classified into Group A, B, C, and D. Okay. Before independence and after independence. Then write 3 committees name one below the other. Okay. First committee, S.K. Dhar Committee, 1948. S.K. Dhar Committee, 1948. Next, JVP Committee, again 1948 only. S.K. Dhar Committee, 1948. JVP Committee, 1948. S.K. Dhar Committee, 1948. JVP Committee, 1948. ठीक है, अब इनके सामने कॉमा बना के लिख लीजिए. These 2 committees rejected the idea of linguistic states. These 2 committees rejected the idea of linguistic states. These 2 committees rejected the idea of linguistic states. These 2 committees rejected the idea of linguistic states. Next, right? Next, below this,
Fazil Ali Commission. Fazil Ali Commission. Fazil Ali Commission. 1953. Fazil Ali Commission 1953. Okay, अब इसके सामने लिखिए based on the recommendation of this commission, 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 Indian territories were classified into states and UTs. Based on the recommendation of this commission, Indian territories were classified into, based on the recommendation of this commission, Indian territories were classified into states and UTs. States and UTs. States and UTs. Hence, okay, full stop. Next slide. Hence, States Reorganization Act of 1956 was passed. Hence, States Reorganization Act of 1956 was passed. Hence, State Reorganization Act of 1956 was passed. Okay. Hence, State Reorganization Act of 1956 was passed. So thereafter, we started having states and UTs. Seventh Amendment Act, States Reorganization Act. Anand, please add. Seventh Amendment Act was also passed. Okay, Seventh Amendment Act was also passed. ठीक है, अब ये सब क्या है? In further lectures, in subsequent lectures, we'll be discussing about these in detail. ठीक है? To explain all this, I have to explain you many things. Is this clear, students? Okay. Yes. So, today we'll wrap up our lecture over here. Okay. I'll ask you all to unmute your audio so that if you have any doubts, you can ask me. Oh, ma'am. Hello. Yes, dear, your name? Hello. Okay, I'll go to the chat box also because students are asking questions there too. Yes, the third committee. First committee was SK Dhar, second is JVP committee, and the third one is Fazal Ali Commission. Okay, so these are the three committees. Yes, Fazal Ali Commission. Okay, and I have a question. Do we have to start practicing on blank sheet? Yes, students, if you're noting down in the class, okay, students, if you're noting down in class, abhi aap just give up the practice of taking those lined books from the stores. ठीक है, वो line वाले books नहीं लेने, take blank books only, blank sheets. ठीक है, so you have folders, blank sheet folders also coming up. Take blank books, no lines in them, because UPSC gives you that only to write. There are no lines in UPSC answer sheets. ठीक है, so it will be better if you start practicing from right now only. ठीक है, and my lecture will go on like this only. ठीक है, because we are on online mode. Okay, it is not so very interactive. Like I'm not able to get many responses from you, but in the class it is very interactive. I keep on asking, students keep on discussing. ठीक है, and this is the way I go. I explain, then I give notes also. So very extensive notes I give in the class, and I request every one of my students to have a separate book of polity altogether. ठीक है, no jumbling, mixing up of polity, economy, all subjects है ना, खिचड़ी नहीं चाहिए एक book में. ठीक है, separate book for separate subjects. ठीक है, and I'll with respect to me, I give very extensive bulky notes only. ठीक है, okay. So this is the way we'll go in the class. अभी से black books use करिए. Okay.
पॉल साइंस के लिए कोई बुक, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बुक. Yes, students, we have dedicated faculty in our class for political science and international relation. Okay, so you can contact the management and they'll let you know about it. Fine, because that faculty will be the better person to explain you about this regarding the book. Yes, books and all. The basic book is M. Lakshmikant for polity. Okay, the one wholesome source of polity is M. Lakshmikant. Okay, updated version, recent version ले लीजिए आप लोग. ठीक है, every year there is a new version of M. Lakshmikant coming up and there are editions. ठीक है, so I'll request you कि अभी if you have now any M. Lakshmikant, that is fine, but when you will appear for the exam you'll have to take a new M. Lakshmikant then, because every one new updations come up every new year, every year. ठीक है, so if you have any M. Lakshmikant already, use that, or if you do not have, then buy this year's edition, latest edition. ठीक है, 6th edition I suppose has come. No, 7th edition has already come. Green book हो गई है. Okay, yes, with respect to NCERT, there are NCERT like Constitution at Work, okay, political theory is there. Okay, all these are there, but I'll say one thing, that the NCERTs with respect to Indian polity, they do not cover everything wholesomely, plus they are scattered here and there. Okay, so जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अगर बताया, तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा, वो एक चैप्टर में है, उसका रिमूवल कैसा होगा दूसरे चैप्टर में, इट इज नॉट कंसोलिडेटेड वेल. फाइन, so you can go through NCERTs. NCERTs कौन सी NCERTs है? Constitution at Work है, political theory है. But in my class, generally to foundation students, what I say, don't take M. Lakshmikant, don't take any NCERT, that is fine. I'll be giving you notes, just go through my notes. That will be sufficient for your basics. Okay, that will be sufficient for your basics. Plus current affairs आते ही रहते हैं. Current affairs, so we discuss a lot in the polity class, because every now and then there is a current affair related to polity. Okay, even now there are things going on, so we discuss current affairs also. So for foundation students, because you have to build only your base. Okay, you are as strong as your foundation, just remember this. Okay, so the better you prepare your foundation books, the better you are prepared for your main exam. Okay, so जो भी notes आपको देंगे, that will be sufficient to prepare your base. Fine. Okay, should we refer to Hindu or Indian Express? Anyone? Hindu has a little difficult language, plus the content is very heavy. Okay, so for currently for you all, I'll recommend you go for Indian Express. The language is simple, the content is not so bulky, it is easily understood. ठीक है, so Indian Express आप पढ़ सकते हो, but you please start reading Hindu only. If you are comfortable reading Hindu, please at least start with editorials. Okay, you have to start with editorials. Just read. Okay, no notes making, because at this stage if you make notes, you'll be chapifying everything from the newspaper itself. Okay, it will be an exact replica of the newspaper, because many things, just build up a habit. It will take an year. Okay, 5 to 6 months for you to grasp the Hindu. ठीक है, so just read editorials. कुछ नहीं तो editorial, वो left में sections आते हैं editorial के. ठीक है, just read, enjoy reading Hindu. This is what I'll say currently. ठीक है, you have a lot of years left for your attempt. ठीक है, और current affairs UPSC generally 1 year recent, and और उसके पहले 1 साल 2 साल का पूछता है. ठीक है, why you have to start Hindu right now? Because Hindu, everyone cannot read and understand Hindu just like that. It takes a lot of time. So अभी से Hindu थोड़ा सा read करना, enjoy reading Hindu. ठीक है, बाकी सारे पेपर्स हटा दो, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना. डेली मेक अ हैबिट कि एडिटोरियल तो पढ़ लिया, या फ्रंट पेज तो पढ़ लिया. फ्रंट पेज एंड एडिटोरियल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. इज दिस क्लियर? ठीक है, यस. एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? Is it compulsory to take Hindi in 12th if we have to appear? No, absolutely not. Yes, you have a Hindi language paper if you choose it. Okay, English language is compulsory, but the second language paper, it is upon you. You can take Marathi, you can take Gujarati, whatever you want. Okay, so Hindi is not necessary, and that too those are qualifying. मतलब अगर 200 मार्क का है तो हार्डली आपको क्वालिफाई करना है बस, है ना. 70 मार्क्स लेके आने हैं, and it is a very simple paper. ठीक है, बेसिक ग्रामर अगर वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे देंगे ना, he will be able to answer. So no Hindi language required in 12th class. Okay, हाँ, for graduation I'll suggest you whatever you are thinking to choose as your optional, please take that subject in your graduation only, if you have that option. Suppose if you want to take pol science, then you take pol science as your graduation subject. Why? This will help you, right? See, we have to, if you have to appear for optional, you have to study, you have to be prepared for optional
till the honors level, है ना? UPSC has given this statement that we require an honors level of study. Honors is what? Somewhere midway between graduation and post graduation. Okay, so एक साल में तो पढ़ के होगा नहीं, 2-3 साल लगेंगे, है ना? So 2-3 years you'll study it in your college. Then when you come to UPSC attempt, है ना? So you'll be given a UPSC perspective for that option, right? Right, like history. If I studied history in my graduation, that gives me a fair idea of history, but history for UPSC is totally different. So when I go for UPSC, some base is ready for me, some content is ready, but to develop that perspective from UPSC point of view, I'll take some time. ठीक है? यूजुअली क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स पॉल साइंस अभी से नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, आज से एक सब्जेक्ट ले लेंगे, तो उनके लिए 2 बर्डन हो जाती है, उनको कंटेंट भी रेडी करना पड़ता है, पर्सपेक्टिव भी रेडी करनी पड़ती है, ठीक है? इट इज वेरी डिफरेंट, यूपीएससी हिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिवर्सिटी हिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट, ठीक है? लेकिन आप लोग के लिए एक एडवांटेज है, आपका कंटेंट बन जाएगा और फिर अप्रोच हम बता देंगे आपको रेगुलर बैच में, ठीक है? ऑप्शनल के लिए भी इज दिस क्लियर? और अगर नहीं भी लिया है, आपका चल रहा है ग्रेजुएशन जिस भी फील्ड में, प्लीज कंटिन्यू विद दैट, ठीक है? इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है? Yes, any other doubts, students, with respect to polity? I hope so I have given you a very good perspective of what UPSC is expecting in polity for you to understand. ठीक है? UPSC is not saying कि politics पढ़ना है आपको, you have to study कि कैसे कंट्री गवर्न होती है, यूएस कैसे गवर्न हो रहा है ना? हाउ इंडिया इज गेटिंग गवर्न. सेकंड, मैंने आपको बुक्स बता दिए हैं कि यस, बेसिक बुक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? CBSE बुक्स आर बेस्ट, ठीक है? NCERTs आर बेस्ट, प्लीज गो थ्रू देम, क्योंकि आपको एक एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है, एंड इफ दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक, प्लीज गो थ्रू दैट बुक. ओके, यस, सो NCERT बुक बता दिया, M लक्ष्मीकांत बता दिया. Yes, any other doubt with respect to polity or anything else? Is there any backup for BA Pol Science? I am not getting your question exactly. Is there any backup for BA Pol Science? Yes, dear Geeta, I'm not understanding your question. Is there any backup? How to choose optional, ma'am? Expect UPSC. Hey students, so I'll let Deepak sir in, okay, for all these general queries regarding UPSC and all, okay, what to choose optional, which optional, what are available in our classes, okay? I'll let Deepak sir in, he'll answer these queries to you, okay? Hello sir. Yes, ma'am. Okay, sir, I have wrapped up my class. You can take on from here. Yeah, ma'am. Okay, I'll just bid bye to everyone, and I'll stop my video. Okay, ma'am. Yes, students. So I hope so you enjoyed the class. Okay, I hope so you found polity interesting. This is the way we'll proceed with polity class. Okay, so all the best to all of you. I hope to see you all in the class. Okay, bye bye. Take care. Yeah, thank you, ma'am. Okay, welcome, sir. Okay, student, we will meet tomorrow at 5 o'clock. Okay, the lecture will be economy. Yeah, bye. I'm ending this session now. Okay, if you have any queries, you can WhatsApp me or message me. Okay, thank you.